In this exercise of the chapter 9, sequences and series. Question number 1. So that the sum of the m plus nth term and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term. Okay. So that the sum of the m plus nth term and m minus nth term of AP, as you know, nth term is equal to a plus n minus 1 into d. तो यहाँ पे क्या गिवन है, m प्लस nth टर्म लेके चलना है. तो नाउ द सॉल्यूशन हियर a plus m plus n minus 1 into d. As you know, nth term of AP is equal to a plus n minus 1 into d. So by this formula we can write it m plus nth term, that is a m plus n is equal to a plus m plus n minus 1 into d. So this is the m plus nth term. Now m minus nth term, a m minus n is equal to a plus m minus n minus 1 into d. So this is the second equation. What have to prove it? We have to prove that a m plus n plus a m minus n is equal to twice a m. ये प्रूव करना है. तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, adding equation first and second, we get a m plus n plus a m minus n is equal to a plus m plus n minus 1 into d plus a plus m minus n minus 1 into d. Now you can simplify it. तो a plus md plus nd minus d plus a plus md minus nd minus d. और इसको क्या ले सकते हैं हम, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, माइनस एन डी और प्लस एन डी कैंसिल हो जाएगा. तो ए प्लस ए मिलके क्या बन गया 2a और एम डी मिलके क्या बन गया 2md और माइनस डी मिलके क्या बन गया माइनस 2d. और इसको क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन मिल गया तो क्या ले सकते हैं a प्लस एम डी माइनस डी. और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं a प्लस, यहाँ से अगर हम d कॉमन ले लें तो ऐसे ले सकते हैं. और ये क्या बन गया ट्वाइस am. तो a m प्लस a m माइनस n इज इक्वल टू ट्वाइस a m, जो कि आपको प्रूव करना था. हेंस प्रूव, वेरी इजी. Now question number 2, if the sum of three numbers in AP is 24 and their product is 440, find the numbers. तो 3 numbers of AP, जैसे हम क्या लिखते हैं, AP में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d. एक तो ये भी AP का सीक्वेंस लेके चलते हैं. अगर 3 नंबर्स AP का लेके चलना है तो एक सीक्वेंस और बनता है a माइनस टी, a एंड a प्लस टी. ये 3 नंबर से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. तो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो इन AP. तो इस सीक्वेंस का भी हम यूज कर सकते हैं. इससे सोल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा और इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा इससे थोड़ा सोल्यूशन लॉन्ग आएगा, इससे थोड़ा सोल्यूशन शॉर्ट में आएगा. तो यहाँ पे दे रखा है इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर. सॉल्यूशन, let a minus d, a plus d
B three numbers in AP according to question पहला क्या कंडीशन दे रखा है, सम ऑफ थ्री नंबर्स, तो इट मीन्स a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 24, और माइनस डी प्लस डी भी कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू 24. दिस implies that a is equal to 8 and their product is 440, and their product means a minus d, a and a plus d, that is 440 is given. To put the value of a minus d and a plus d, you can write it a square minus d square multiplied by a is equal to 440. Put the value of a means 8, so 8 is square minus d square into a means that is 8 is equal to 440, or 8 square minus d square and 440 upon 8, तो 8 5 जा, तो it means 8 की स्क्वायर में that is 64 minus d square is equal to 55, or d square is equal to 55 minus 64. 55 minus 64, it means 9. So d square is equal to 9, or d is equal to 3. So this implies that d is equal to plus minus 3. तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3. Now taking d is equal to 3, we get numbers of AP, that is a minus d, तो 8 minus 3, 8 and 8 plus 3, that is 5, 8 and 11. Taking d is equal to minus 3, we get numbers of AP, that is 8 plus 3 and 8 minus 3. ये नंबर से हमने क्या सपोज किया, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इसे इंपुट कर देंगे d की, a और d की वैल्यू, तो 8 plus 3 that is 11, 8 and 8 minus 3 that is 5. So this is the three numbers which follow the condition, given condition. Now the question number 3. Let sum of n, 2, n, 3 n terms of an AP be S1, S2 and S3 respectively, so that the S3 is equal to 3 S2 minus S1. Okay. N and sum of n terms of AP be S1, and sum of 2 n terms of AP is S2 is given, and sum of n 3 n terms of AP is S3 is given. Then you have to prove that S3 is equal to 3 S2 minus S1. So as you know कि Sn, as you know, Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. This is the formula. Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Here it is given S1 be the sum of n terms of AP. So n by 2, 2a plus n minus 1 into d. This is the first equation.
S2 be the sum of S2 be the sum of 2n terms, 2n by 2, 2a plus 2n minus 1 into d. So this is the second equation. And S3 be the sum of 3n terms, 2a plus 3n minus 1 into d. This is the third equation. S1, S2 and S3. Okay, so that the S3 is equal to 3S2 minus S1. Now you have to find the S2 minus S1. S2 minus S1. S2 means sum of n terms, sum of 2n terms, 2n by 2, 2a plus 2n minus 1 into d. This is the S2 minus S1. S1 means n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So this is the S2 minus S1. S2 minus S1. Now 2 to cancel. So then we get 2an plus 2n square d. Open this bracket. 2n square d minus nd minus S1. If you open this bracket n by 2, so 2 to cancel means minus an minus n square d by 2 plus nd by 2. So this is the 2n minus an, that is an. And this is the like term. तो 2an से हम क्या करेंगे, an माइनस कर देंगे, यानी क्या बचेगा an प्लस 2n स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी, 2n स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी. मतलब अगर हम इससे माइनस का लाइक टर्म है तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं 3/2 n स्क्वायर डी एंड माइनस एन डी प्लस एन डी बाई 2. तो -1 है और प्लस हाफ है, यानी हम इसको क्या ले सकते हैं -1/2 ऑफ डी एन डी एन प्लस 3/2 एन स्क्वायर डी -1/2 ऑफ एन डी. अब यू हैव टू शो दैट कि S2, नाउ यू हैव टू फाइंड द 3S2 minus S1. तो देन मल्टीप्लाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड, S2 minus S1, 3an plus 3/2 n square d -1/2 n d, that is 3an plus 3 3 जा 9/2 n square d -3/2 n d. अब हमको क्या फाइंड करना है S3 मीन्स लाना क्या है 3n/2, 2a प्लस 3n माइनस इतना लाना हमको. तो यानी हम 3n/2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं. अगर हम 3n/2 कॉमन ले लेंगे तो 3n/2 कॉमन ले लेंगे. कॉमन यानी हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते, 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो यानी हम 3n/2 कॉमन ले लेते हैं. यहाँ कितना आ जाएगा 2 ये आ जाएगा प्लस अब 3n/2 यहाँ पे 3/2 कॉमन ले लिया है तो यानी कि 9/2 अपॉन 3/2. तो क्योंकि अगर हम कॉमन लेते हैं इट मीन्स डिवाइड करते हैं, हम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं कि 9/2 डिवाइड बाई 3/2. कितना बचेगा 9/2 इंटू 2/3, तो कट जाएगा ये 3 आ जाएगा. तो दैट इज 3n स्क्वायर डी माइनस यहाँ पे 3/2 बाहर कॉमन ही है एन डी हो गया. इसको क्या ले सकते हैं 3n/2 2a प्लस यहाँ से एन डी कॉमन मिल जाएगा. तो यानी हम ले सकते हैं 3n माइनस 1 डी. एन भी तो आएगा. अच्छा एन कॉमन ले लिया है ना, तो एन कॉमन आएगा तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ 3n आएगा, यहाँ पे डी आएगा. कॉमन हमने क्या लिया यहाँ पे 3/2 यानी 3
3/2, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम 2 डिवाइड कर लेंगे तो 3/2 आएगा, n ले लिया कॉमन। अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 और a मिलकर 2 ये बन गया। ऐसे 9/2 को अगर करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए थे तो 3n कॉमन लेते यहाँ पे ये हट जाएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, सिर्फ nd आएगा। यहाँ पे 3/2 हट जाएगा ये, तो यानी यहाँ सिर्फ d आएगा। अब उसके बाद इसको अगर हम यहाँ पे 3n/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 ये, और यहाँ पे क्या मिलेगा, d कॉमन ले लेंगे तो ये किसके इक्वल है, ये दिस इज इक्वल टू द S3, 3s2 minus s1, hence proved. This is the solution of the question number 3. Now question number 4. Question number 4. In question number 4, find the sum of n terms. Find the sum of all the numbers between 200 and 400 which are divisible by 7. Okay, divisible by 7, यानी कि 200 से 400 के बीच में जितने भी नंबर 7 से डिविजिबल हैं सबका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले 200 के बाद हम वो नंबर देखेंगे जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो यानी अगर हम 200 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 14, 6 आएगा, यहाँ 40 हो गया, 60 हो गया, 7 8 जा 56, यानी रिमाइंडर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यानी अगर हमारे पास 3 और होता तो 1 टाइम पूरा डिवाइड हो जाता। तो यानी हमें क्या चाहिए, 200 पहले था, 3 और चाहिए, तो 203 अगर होता तो यानी कि ये पूरा डिवाइड हो जाता। तो यानी हमारा जो फर्स्ट नंबर बन गया, कितना बन गया, 203। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट नंबर बनेगा, क्या बनेगा, 203। तो 203 मतलब कि गिवन AP, फर्स्ट नंबर क्या बन गया, 203। अब 210 आएगा, फिर 217 आएगा, डैश। अब यहाँ 400 दे रखा है, तो 400 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 7 5 जा 35, यहाँ से आ जाएगा ये 5, 50 हो गया, 7 7 जा 49 यानी 1। तो अगर ये यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी इस 1 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमें इसके बीच में लेके चलना है। तो अगर हमारे पास ये 399 होता तो इट मीन्स कि ये जो है 3 से डिवाइड हो जाता, सॉरी 7 से डिवाइड हो जाता, 399, यानी लास्ट टर्म हमारा कितना आ जाएगा, 399। पहले वाला नंबर में ऐड करते हैं और लास्ट वाला नंबर में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बिटवीन पता चल जाता है कि कौन कितने नंबर्स आएंगे। अब एक हियर a इज इक्वल टू 203, d इज इक्वल टू 210 माइनस 203 दैट इज 7, एंड लास्ट टर्म इज गिवन हाउ मच, an 399। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो एज यू नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। पुट द वैल्यू ऑफ an दैट इज 399, a means 203 plus n minus 1, d means 7। तो 399 203 plus 7n minus 7, और इस 7 को ऐड करेंगे यहाँ से, तो 399 minus 203 plus 7 is equal to 7n, और 399 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 406, और 406 से 203 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 203 आई थिंक 203 आ जाएगा। या कुछ और आएगा, चलो फिर से देख लेते हैं। 7 में 7 हुआ, ये किलो 399। अब इसको करें तो 406, तो 406 से 203 माइनस कर देंगे, 203 आएगा। तो दैट इज 203 इज इक्वल टू 7n।
Therefore n is equal to 203 upon 7. तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63. Therefore n is equal to 29. Now you have to find the sum of 29 terms. It means S29. That is 29 by 2. अब फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो हम a प्लस एल अप्लाई कर सकते हैं. a मीन्स 203 और l मीन्स हाउ मच 399. 399 क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है यहाँ पे, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. दैट इज़ 29 by 2. और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 9 3 12, दैट इज हो जाएगा ये 602. डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 301. और 301 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 29 से तो 9 1 जा 9, 9 0, 9 3 जा 27, 2 1 जा 2 और 2 0 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया. तो 9 2 7 6 2 8, यानी दैट इज 8 7 8 7 2 9. So this is the sum of 29 terms of AP. Of the given AP is equal to this much. Now question number 5. Question number 5. Find the sum of the integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. Find the sum of the integers from 1 to 100. 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. 2 और 5 यानी 1 to 100 के बीच में जो 2 से कैंसिल हो जाए और 5 से कैंसिल हो जाए, तो इसका हमको सम फाइंड करना है. ओके, सॉल्यूशन ले लिए यहाँ पे. गिवन एपी, अगर पहले 2 से देखते हैं, विच आर डिविजिबल बाई 2. डिविजिबल बाई 2 तो कौन कौन सा नंबर आएंगे, यहाँ भी दिया है फ्रॉम 1 to 100, यानी 2 से 100 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 4 6 8 डैश 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 कहाँ तक 100 तक. ये तो 2 से हो गया, तो यानी a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2 एंड an इज इक्वल टू 100. तो देयरफॉर an is equal to a plus n minus 1 into d. an means 100, a means 2 plus n minus 1, d means 2. Simplify this, that is 100, 2 plus 2n minus 2, yani n is equal to 50. So there are the 50 terms between 1 to 100, from 1 to 100 if it is divisible by 2. अब ये तो ये कब लिया गया, जब 2 से डिविजिबल है तो 50 टर्म्स है. तो अब ऐसे ही यानी अगर हम इसका सम फाइंड करते हैं तो मान लेते हैं दिस इज द S1 सम ऑफ 50 टर्म्स. तो 50 by 2 a plus l, that is 2 plus l means 100. तो 50 by 2 दैट इज हो गया 50 by 2 102. इट मीन्स 50 by 2 multiplied by 102, then we get 102 means that will be the 25. So 25 multiplied by 102, then we get the 2550. 2550 तब आएगा जब किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो. अब किससे देखना हमको, 5 से. अगेन AP which is divisible by 5. अगर 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा, सीक्वेंस 5 10 15 डैश 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 200. तो a is equal to how much, 5, d is equal to 5 and l is equal to r, an is equal to 200. So first we have to find how many numbers are from
5 to 200 which are divisible by 5. So it means कि 200, not 200, this is the 100. 100 is given. Correct it. This is the 100. So 100 is equal to 5 plus 5 minus 1. Not 5, n minus 1. n minus 1, d means 5. So that is 95 n minus 1 divided by 5. Or n minus 1 is equal to 95 by 5. It means 19. So n is equal to how much? 19 plus 1, that is n is equal to 20. तो n is equal to 20 हो गया. अब हमको क्या फाइंड करना है? एस एन फाइंड करना है, यानी n बाई 2 a प्लस ए एन यहाँ भी अप्लाई करना है, दैट इज 20 बाई 2 और a मीन्स 5 और प्लस ए एन मीन्स 100. तो इट मीन्स 10 2 10 जा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 105, दैट इज 1050. अब इसमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन टर्म्स को माइनस करना पड़ेगा, तब हमको एक्चुअल पता चलेगा. इसमें कुछ नंबर्स ऐसे होंगे, क्योंकि जो वो नंबर जैसे 10 है, 10 2 से भी डिवाइड हो गया और 5 से भी डिवाइड हो गया. 20 है, 30 है, 40 है, तो दिस इज डिवाइड बाई 2 एंड ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 5. तो अब पहले हम उस नंबर को देखें कि ये कितने नंबर, इनका सम कितना आएगा. ये लिया हमने कितने नंबर्स का? 20, यानी एस 20 टर्म्स का. Again numbers which is divisible by both 2 and 5. 2 and 5 जो 2 से भी डिविजिबल और 5 से डिविजिबल है. तो कौन कौन सा नंबर्स आएंगे? 10, 20, 30, dash 100 are in AP. तो A is equal to 10, D is equal to 10, AN is equal to 100. It means 100 is equal to A plus 10 plus n minus 1, D means 10. So it means if you 100 minus 10, 100 minus 10 is equal to n minus 1 into 10, that is 100 minus 10, that is 90, n minus 1 into 10. और इसको क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं कि 10 से क्या हो जाएगा? 90 डिवाइड हो जाएगा तो 9 आ जाएगा. तो n minus 1 is equal to 9 और n is equal to 10. There are the 10 numbers. Now SAN, सम ऑफ S10, मतलब 10 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे. तो 10 बाई 2 a प्लस एल. a मीन्स है 10 एंड l मीन्स हाउ मच? 100. तो डेट इज 10 बाई 2 110 और 5 इंटू 110, दैट इज 550. Now 550. अब हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे? रिक्वायर्ड. अब हमको जो रिक्वायर्ड सम फाइंड करना है, रिक्वायर्ड सम, यानी हम क्या करेंगे कि जो है इसको S1 को, S1 मीन्स क्या है? 50 टर्म्स का सम. S1 मीन्स 50 टर्म्स, S1 प्लस S2, और S2 मीन्स क्या है? S2 मीन्स 20 टर्म्स का. S2 मीन्स या ऐसे लिख सकते हैं S50 प्लस S20 माइनस S10, इन दोनों को ऐड करेंगे, S10 माइनस कर देंगे.
तो S50 की वैल्यू कितनी आई है 2550 और S20 मीन्स है 1050 माइनस 550 और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 550 से माइनस होगा 2003 और 1050 यानी कि 3050 दैट इज 3050 तो दिस इज द आंसर। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाई 2 और 5। तो हमें ऐसे नंबर्स लेके चलने हैं जो 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 तक बीच में नहीं बल्कि 1 से 100 तक, जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले 2 का फाइंड कर लिया गया और फिर 5 का फाइंड कर लिया। अब कुछ नंबर ऐसे मिलेंगे जो 2 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों से डिवाइड होगा, तो उसका भी सम फाइंड कर लिया गया। अब उसमें से पहले 2 का सम जो होगा उसमें से जो नंबर 2 और 5 से डिवाइड होगा क्योंकि कॉमन आएगा तो हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे, तो ये दोनों में काउंट हो जाएगा। जैसे 10 है तो 10 2 से भी डिवाइड होगा तो S1 में भी काउंट हो जाएगा, यानी S50 में भी काउंट हो जाएगा, S50 में भी काउंट हो जाएगा और S20 में भी काउंट हो जाएगा। तो इसको एक ही बार लेके चलना है, इसलिए हम क्या करेंगे S50 का जो सम है, सम ऑफ 50 टर्म्स जो आया, सम ऑफ 20 टर्म्स जो आया, और फिर माइनस कर देंगे जो सम ऑफ 10 टर्म्स आया और माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, find the sum of all 2-digit number which when divided by 4 yield 1 as a remainder. Find the sum of all the 2-digit number which when divided by 4 yield 1 as a remainder. Find the sum of the 2-digit number कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है। अब कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑल 2-digit नंबर विच व्हेन डिवाइड बाई 4, यानी अगर हम 10, 11, 12 ये क्या नंबर हैं जो 4 से जो 2-digit नंबर है। अब इसमें वो नंबर बताना है जो 4 से डिवाइड हो जाए। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो यहाँ अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 12 को तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 13 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 13 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो यानी कि 4 3 जा 12 रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर हमारा क्या मिल जाएगा 13। फर्स्ट नंबर हमारा जो मिल जाएगा वो कौन सा नंबर होगा 13। तो इस तरह से AP मैंने अब एक नंबर मिल गया तो हम अगला नंबर 4 ऐड करते करते हम फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल 2-digit। अब 2-digit नंबर कहाँ तक आ जाएगा 99 तक, तो 99 तक आएगा। अब 99 में हमको देखना है कि जो है, क्योंकि अगर हम 99 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 22, नहीं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 1 1 19 होगा, 4 4 जा 16, तो 16 यानी 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यानी इसको ये फॉलो नहीं करेगा। अब इससे एक कम लेके चलेंगे 98 तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि इससे और एक कम लेके 97, तो 97 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दे 4 1 जा 4 और 4 3 37 होगा और 4 9 जा 36, यानी कि 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यानी कि हमारा जो सीक्वेंस आएगा क्या आएगा 13 17 21 से कहाँ तक 97 तक। गिवन AP क्या बनेगा 13 17 21 dash 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 97। Here A is equal to 13, D is equal to 4, 13 17 minus 13 करेंगे 4 आएगा, and AN is equal to how much is given 97। तो now AN is equal to A plus N minus 1 into D। अब AN इज 97 गिवन है तो 97 लिख दिया। A की वैल्यू है 13 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू है 4। अब इसको ट्रांसपोज कर लेंगे 97 माइनस 13 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 4।
7 minus 3 that is 4, 8 minus 1 that is 9 minus 1 is equal that is 8 upon 4 is equal to n minus 1. 4 2 जा 4 1 जा 21. It means n is equal to 22. n minus 1 is equal to 21 है, 1 को ट्रांसपोज कर लेंगे तो n is equal to 22 आ जाएगा. अब क्या करना, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स. तो ऑल 2 डिजिट नंबर मीन्स you have to find the sum of 22 terms, that is 22 by 2 2a और a प्लस अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस l, तो दैट इज 13 और प्लस an 97. इट मीन्स 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 और ये 90 प्लस 22 2 से कट जाएगा 11 आएगा और 13 और 97 अगर ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा और 2 से अगर 11 इंटू 110, 11 में अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट दी 121 एंड 0 दैट विल बी दी 1210. तो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. इफ एफ इज ए फंक्शन सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट f1 is equal to 3 and summation of x is equal to 1 to n, fx is equal to 120. Find the value of n. Summation means sigma यानी x यहाँ पर f1 अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते तो f1 आएगा, फिर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 पुट कर कहाँ तक लेके चलना है, fn तक फाइंड करना है. तो समेशन मतलब कि सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट इज f1 प्लस f2 प्लस f3 से लेके कहाँ तक fn का जो सम है 1 से लेकर के f1 से लेकर के fn तक का जो सम है उसकी वैल्यू 120 है. तो हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सिंस एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है 1 की वैल्यू गिवन है, f1 की वैल्यू गिवन है. तो अब हमें ये भी कह रहा है कि x और y किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है. तो हम सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इन फर्स्ट वी गेट क्या मिल जाएगा, f1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा f1 और f1. तो ये क्या बन गया f2 और ये क्या बन गया 3 इंटू 3 दैट इज 9. तो f2 इक्वल टू किसके आ गया 9 के. अब ऐसे क्या फाइंड करना है, f3 फाइंड कर लेते हैं. तो यानी कि हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2. तो इसको क्या ले सकते हैं f1 इंटू f2 और f1 की वैल्यू कितनी है 3 और f2 की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो यानी दैट इज 27. तो f3 इक्वल टू 27. अब ऐसे ही हम अगर हम सीक्वेंस बनाएं देयरफॉर क्या बन जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस प्लस सो डैश fn इज इक्वल टू 120 इज गिवन. Now f1 means first term that is given 3, f2 means 9 and f3 means 27 plus plus so dash fn is equal to 120. अब अगर यहाँ देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस किस में है, 9 से 3 माइनस करते हैं तो 6 आएगा और 27 से 9 माइनस करते हैं तो अलग आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा. अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करते 3 आएगा और 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करते 3 आएगा, तो यानी कि कॉमन रेशियो क्या है, सेम है. तो यानी कि ये जो सीक्वेंस बनेगा किसमें है, जीपी में है. हियर a इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 9/3 दैट इज 3. तो एज यू नो कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या फार्मूला होता है, SAN इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1.
तो यहाँ आर की वैल्यू 3 है यानी कि ग्रेटर देन 1 है, तो हम क्या फार्मूला लगा देंगे, ये फार्मूला लगाएंगे ए आर पावर एन माइनस 1। तो ए की वैल्यू कितनी है 3 और आर की वैल्यू कितनी है 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 120। और अगर इसको और सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 3 पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 120 इंटू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज 240 डिवाइड बाई 3। तो 3 पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 80 और 3 पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 80। दिस implies that 3 power n is equal to 80 plus 1, that is 3 power n is equal to 81. This implies that 3 power n and 81 3 पे पावर 4, यानी कि अगर हम 81 को 3 से कैंसिल करते हैं तो आएगा 27, 3 से कटेगा तो 9, फिर 3 से कटेगा तो 3 एंड फिर 3 से कटेगा तो 1, तो यानी कि 3 पावर 4, यानी बेस इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल, यानी n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 इज द आंसर हियर, n इज इक्वल टू 4। अगर बेस यानी कि x पे पावर m और इज इक्वल टू x पे पावर n है तो हम क्या कहते हैं m इज इक्वल टू n, बेस इसको बोलते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं वही है यहाँ पे, x पावर m इज इक्वल टू x पावर n, तो देन m इज इक्वल टू n। तो बाय दिस वे हियर n इज इक्वल टू 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज completed. Question number 7 is completed.